Acha. Okay, so children, sir is going to be joining Chirag sir, Mr. Chirag Kayas. Forgive me if I pronounce his surname wrong. I'm not very sure about it. But he's going to be joining with us in a few minutes. So till then, let us have a discussion. Okay, sir. It is an open discussion. You can just unmute yourself and speak whenever you like to. Okay, ma'am, there are children in waiting room, and I'm taking everybody in, sir. should I admit? आप करिए, I'll take them in. So, हाँ, ठीक है, ठीक है. Okay, so the argument is, ध्यान से सुनो, ठीक है? Listen to me very carefully. The argument is that birds are dying. Right now we are talking in context of Uttarayan only. Okay, Uttarayan के context में बात कर रहे हैं. Okay, so argument is the birds are dying, humans are suffering. Okay, nature is suffering. Okay, this is one side of argument, and there is a set of people who is working for this cause. Okay, the other part of the argument is that our culture is diminishing. Our culture is diminishing. Our traditions are fading. Okay, our traditions are fading, and there is one side of people who are on this side of argument. Okay, now the thing is that we as a new generation, especially you, I am one generation ahead of you. You are the most I mean, what you can say, the most modern generation. Okay, so where do you find yourself on the spectrum? एक है जैसे there is one there is the first part of argument that there are so many things happening. There is so much problem being caused by the way we celebrate the things, and the other part of the spectrum is that there are traditions which are fading away. Okay, so where will you put your argument from here to here? ये बीच वाली जगह है, उसमें where do you place your argument and how will you justify your argument? Okay, see, I do not want anyone to push for any cause. हम लोग अभी कोई cause के लिए push नहीं कर रहे. I just want to know where do you stand on the spectrum. I hope I am clear enough. Yes, those who have raised hand, you can just unmute yourselves and start speaking. Yes, I believe this is Kishika, and yes, Kishika, you may speak. Yes, sir. So, sir, according to me, I think that I should go upon the birds, in the birth side, because today, as we are seeing that there are so many birds who are dying, and I think that I should be going to this side, to this spectrum. Okay, so you feel that let us say we can just call it 1 and 2. So between 1 and 2, you are on the 1. Yeah. On the one side of it. Okay, Yeah. fine. Then yes, just as Kisika said, you can see. ऐसा नहीं कि सबको everyone has to fall in line, है ना? Line में नहीं लगना है एक opinion के पीछे. Okay, we want variety of opinions and we want variety of explanation. Okay, so yes, let's say just start speaking. Yes, Paul, you can speak. Yes, sir. So, sir, one coin every two sides, as you all know, one advantage and one disadvantage. As you say that our traditions are diminishing, sir, it is not like that. We are modern generation, so we will make some new traditions by ourselves, so as we feel. And sir, as our obsession for flying kites, we should decide a particular time when birds are also, resting, and when,
all people are also resting. At that time, we should go up and then fly kites so that no one will harm. And sir, I would like to add on that, as you said, people are also getting harmed, so they are getting cut by their neck. And sir, also the cleaners, they are not able to celebrate their festivals because of us, because we are making such a mess. They are full time, they are cleaning the India, and they are not able to celebrate their festival. Okay, fine. Uh, quite strong, pitch by you. See, the meaning of tradition, जो चलता आ रहा है उसको ट्रेडिशन कहते हैं, है ना? अब उसको बदल देंगे तो वो ट्रेडिशन नहीं रहेगा. And that is the main argument that is on the second side. Okay, but it is fine. Yes, yes, yeah, you may speak. Yes, ma'am. Yes, sir. I think that I should go for the second side, as in saving the tradition. So, sir, I believe that there is always a solution for everything. So, sir, I believe that we should all get a solution for this and also save our tradition at the same time. Like the cricket grounds are there. They usually have a net. So, I believe that there should be a big area in each place, like Surat, suppose, a big area in which people, and it is very tall and it has nets in which people can go and fly kites easily without dirtying it and come back. As in this way, birds will also not get harmed and our tradition will also be saved. And sir, one more thing, like Pearl told, like nowadays, like birds are like getting harmed. Even people itself are dying because of the threads and everything. So this was actually not the tradition. People are spoiling the tradition itself. The tradition was to fly kites in the open sky using soft threads. It was just a playful thing, but nowadays people like jump from building to building just to catch a kite. So sir, we itself are the people who are spoiling the tradition, and I think that there should be a change in this tradition, in the spoiled tradition, and we should get the the tradition that was going on before back. So we cannot tell that this is our tradition. We should bring the tradition back. So this is a very beautiful argument too. Yes, Neil Karandia is writing that they nowadays do competition. Yes, people get involved in competition. Yes, when I was a kid, see, okay, give me some time. Yes, I see so many of you have raised your hands. Just give me a minute. So this is quite a beautiful argument too, that we call tradition, जो होता आ रहा है उसको हम ट्रेडिशन बोल रहे हैं, पर जो होता आ रहा है वो तो कंटिन्यूसली चेंज भी हो रहा है. तो व्हाट डू वी कॉल ट्रेडिशन? जो फॉर एग्जांपल जस्ट 1800 में जो हो रहा था उसको ट्रेडिशन बोलेंगे, 1900 में जो हो रहा था उसको ट्रेडिशन बोलेंगे, 1950s में जो हो रहा है उसको ट्रेडिशन बोलेंगे, या 2000 में जो हो रहा था उसको ट्रेडिशन बोलेंगे. ओके, so that is quite a beautiful argument too. What do you call tradition? Okay, anyway, the thing I liked about your argument, Jia, is that we need to be solution oriented. Okay, problem तो है, we know that problem है, और कब से I remember when I was in school, in probably 7th or 8th grade, I signed up for this bird conservation. I mean, the institution that we had in our school was Prayas only. The institution to which Chirag sir belongs was the same institution that we had in our school when I was a kid and when I signed up for nature conservation during Uttarayan. So we know that the problem has been existing for a long time now. Okay, so instead of just continuously making a statement that ये problem है, वो problem है और बंद कर देना चाहिए, we need to figure out alternatives and solutions. Okay, so let us talk about that. Let us talk about solutions. Okay, so
If you have something, the other day when we were having life skill class in 9th grade, Kavita ma'am gave a wonderful solution, and I really liked it. I don't think Kavita ma'am is in the class, but I will share with you the solution that she gave. But first I want to hear it from you guys. Okay, what can be the solution? Okay, so let's say Riva, you can speak, and there is no specific order. You can just unmute yourself and start speaking. See, this is open discussion. ओके, ओपन डिस्कशन क्या होता है? तुमको बोलना है तो बोलो, दूसरे की बात मत काटो, बस दैट। ओके, यस, Okay. So, sir, here people only need to understand that we should use the soft threads. Actually, nowadays people are bothering about winning, not caring for animals. So, ma'am, sir, what is happening? That the birds are dying, and from that the bird flu is spreading. And ma'am, sir, people are telling that because of birds this is happening, but they are not saying the actual reason behind it. So people only need to understand, and we can spread awareness also in our news, CIS news. We can do it. Just give me a minute. Yes, Riva, बेटा बर्ड फ्लू, ओके, बर्ड फ्लू बेटा थोड़ी अलग बात है, बट एनीवे birds are not the see, victim cannot be the problem. Do you understand? Victim problem नहीं होता है, problem is the actuator. Okay, so yes, someone else would like Can to I, sir? continue? Yes, beta. Yes, sir. So we talked about traditions. Yes. So, Yes. so we were talking about traditions. So many times the thought comes to my mind that who made this tradition? We are the people who are making this tradition, sir. So the birds, there is no time there the birds can not fly in the sky, sir, because sir, as we are living in our homes, the sky Sorry to is the interfere, Riya, home in for between. our Chirag birds. sir is with us. Agam sir, Chirag sir is with us now. Okay. Yes, Riya, I get your point, and that is yes, that is indeed true that birds have been existing for quite a while, and we have been coexisting with them for quite a while. Okay, so who makes these traditions? Okay, we'll continue the discussion whenever again we get some time, maybe on Saturday. Okay, so now let me introduce you to Chirag sir. Chirag sir, a very good morning, sir. Sir, am I audible? Yes. Good morning. Yes, so children, Chirag sir is a volunteer at Prayas. Right now, just I told you that when I was a kid in school, I went to this nature conservation effort during Uttarayan, and the institution that was present back then, मैं स्कूल में था, उसको 10 साल हो गए अब, है ना? तो so back then it was the same institution, it was Prayas, and Chirag sir here is volunteering with Prayas since last 9 years. Okay, 9 years is a long time, and he has been doing a wonderful job spreading awareness for this cause, spreading awareness for the birds and the safety of people. Okay, he is an MBA graduate, and he is currently working as academic counselor in Parul University as the head of South Gujarat region. Okay, so we have a wonderful opportunity of having Chirag sir here, and he will be talking to you regarding the safe celebration of the festival that we call as Uttarayan. Okay, over to you, Chirag sir. Thank you so much, sir. Good morning to all of you. Good morning, sir. Jai Hind. Good morning, sir. Sir, Jai Hind. Good morning, sir. Morning, sir. Jai Hind. Good morning, sir. Jai Hind. So
एक्चुअली ये सेमिनार कंडक्ट कैसे हुआ और प्रयास क्या है उस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे थ्रू आउट दिस सेशन। एंड एक छोटा सा वीडियो है हमारे पास जिसके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे हम ये उत्तरायण को सेफ उत्तरायण कर सके और साथ में उत्तरायण फेस्टिवल जो है उसको हम अच्छे से हम एंजॉय भी कर सके। ये दो चीज है जो हमें आज पूरे सेशन में जाननी है। सबसे फर्स्ट प्रयास एनजीओ के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। प्रयास एनजीओ जो है वो बेसिकली, नाम काफी लोगों ने सुना होगा कि प्रयास एनजीओ है, वो बर्ड्स को बचाते हैं, एनिमल्स को बचाते हैं, रेप्टाइल्स को बचाते हैं, राइट। तो आपके जो सर है संजय सर हमारे साथ काफी एक्टिवली जुड़े हुए। संजय सर काफी बार हमारे वहाँ पे स्नेक रेस्क्यू प्रोग्राम में भी आए हुए हैं, ट्री प्लांटेशन में भी सर पार्टिसिपेट कर चुके हैं हमारे वहाँ पे। तो रिसेंटली हमें उनके वहाँ पे घर पे जाने का मौका मिला था। उनके वहाँ पे एक डॉग है जिसके रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तब सर से थोड़ा डिस्कशन हुआ और सर ने बोला कि यही चीज हमें अपने बच्चों के पास भी पहुंचानी चाहिए कि कैसे हम ये उत्तरायण को और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाए, ताकि खुद भी एंजॉय करे और साथ में जो बर्ड्स है उसको भी हम कम से कम हार्म कर सके, राइट। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उत्तरायण फेस्टिवल एंजॉय करते हो, सभी एंजॉय करते हैं, बट काफी सारे लोग पतंग उड़ाते हैं, काफी सारे नहीं उड़ाते हैं। तो जो नहीं उड़ाते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ अलग एक्टिविटीज है, जो उड़ाते हैं उनके लिए कुछ अलग चीज है। तो हम वो दोनों चीजों को कैसे करना है सब कुछ हम देखेंगे। और साथ में एक छोटा सा वीडियो में अभी मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो वो वीडियो देखेंगे और बीच बीच में हम समझते जाएंगे। आफ्टर द सेशन अगर आप में से किसी को भी कोई भी बर्ड्स, एनिमल्स या ट्रीज, किसी के भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, आप यहाँ पे रेज कर सकते हो। वन बाय वन आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। ओके, फर्स्ट हमने काफी सारे बर्ड्स देखे जिसको बहुत सारी इंजरीज थी, काफी डेड हो चुके थे, काफी के बोन्स टूट गए थे। ओके, ये फोटोज देख के ही काफी लोगों के मुंह बन गए होंगे, राइट। मैं अभी शायद फेस नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों के फेस यहाँ पे बने होंगे कि यार ये कैसा है, गंदा है, नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन वो चीज की किसने है, उनको हार्म किसने किया है, उसको ये ब्लीडिंग किसने की है, किसने ये डेथ दी है उनको। शायद हम में से ही कोई एक 9 साल पहले मैं भी ये फेस्टिवल एंजॉय कर रहा था, मैं भी ये काइट फ्लाइंग और सब कुछ कर रहा था, अभी भी मेरे फैमिली में सब लोग करते हैं। बट वो कैसे हमने कम किया जिससे ये बर्ड्स को कम इंजरी हो, कैसा हमें ट्रेड बनवाना चाहिए जिससे इंजरीज कम हो, इसके ऊपर हम पूरा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मोर देन 5000 बर्ड्स गो थ्रू दिस एवरी ईयर इन अहमदाबाद। ये अहमदाबाद में है 5000, सूरत में है 3000 बर्ड्स ऐसे हैं जो एवरी ईयर हमारे पास 14, 13, 14, 15 एंड 16 ये 4 डेज के अंदर हमारे वहां पे आते हैं। ये 4 दिन में इंजर्ड बर्ड्स की काउंटिंग है 3000। मैनी डाई और फ्यू सर्वाइव टू गो थ्रू इट अगेन द कम ईयर। अब बहुत सारे 3000 में से 1000 ऐसे होंगे जो मर जाते हैं, लेकिन जो 2000 है ना, वो क्या करते हैं,
एवरी ईयर के लिए हमारे पास ही केज के अंदर पड़े रहते हैं। केज के अंदर हम उनको खाना देंगे, पानी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन एक फ्रीडम से जो जीना चाहिए उनको वो नहीं जी पाते। वो हमेशा के लिए ही हमारे साथ एक केज के अंदर 10 बाय 10 के केज के अंदर रह जाएंगे। वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा। जो भी उड़ने जैसे होंगे, जो 2000 है उसमें से करीब 200 या 300 ऐसे होते हैं जो काफी अच्छे हो जाते हैं एंड उड़ पाते हैं। लेकिन वो उड़ के भी क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर वापस से हम मारेंगे, नेक्स्ट ईयर वापस वो हमारे पास आएंगे, राइट। ओके, काफी सारे बार हम में से काफी सारे लोग होते हैं जो टेरेस पे हम लोग खाना डालते हैं पिजन्स के लिए और बाकी सब बर्ड्स के लिए, पानी रखते हैं, पानी के बाउल्स रखते हैं। तो आपने काफी बार देखा होगा पिजन्स जो है ना वो इतना सारा खाना खा लेता है कि उसका जो नेक का पोर्शन है वो पूरा आपको दिखेगा एकदम बड़ा हो गया है। क्यों वो हो जाता है? वो जो पिजन है वो अपने बच्चों के लिए खाना यहाँ पे स्टोर करके जाता है। जैसे हम कैमल्स के लिए बोलते हैं कि कैमल्स अपने वहाँ पे जो पानी होता है वो स्टोर करता है, वैसे ही पिजन्स जो है वो भी अपना खाना अपने नेक पोर्शन में स्टोर कर सकते हैं। वो स्टोर किस लिए करते हैं? खुद के खाने के लिए भी, और काफी बार अपने घोंसलों में जो उनके बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो खुद से खाना नहीं खा सकते, खुद उड़ नहीं पाते उस टाइम पे, तो वो लोग क्या करते हैं, जो माँ रहती है वो उनके बच्चों को अपने चोंच से खाना खिलाती है। तो काफी बार हमारे पास ऐसे बर्ड्स भी आए हैं जो ऐसे ही आए हो, खाना लेके जा रहे हैं या कुछ भी है, हमें पता नहीं है कौन सा है बर्ड्स, कौन सा पिजन ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रहा है। हमारी थ्रेड ऐसा नहीं देखती कि ये बच्चों के लिए खाना लेने जा रहा है। हमारी थ्रेड ये नहीं देखती कि ये पिकॉक है, आउल है, काइट है, क्या है, वो हमारी थ्रेड नहीं देखती है। तो 3000 जो मैंने फिगर बताया वो तो थ्रेड से कटने वाले हैं। बाकी कितने बच्चे ऐसे होंगे जो खाने की वजह से डेथ हो जाते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है टाइम पे, उसकी वजह से डेथ हो जाते हैं। एक दिन 2 दिन सरवाइव करेंगे, लेकिन बाकी सारे बर्ड्स भी हैं जो वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे बच्चे हैं तो शिकार करते हैं, वो सब भी काफी सारे हैं जो डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ जाती है। Main reason behind all that injury, not only animal or birds injury but even human injuries as well। हमारे वहाँ पे एवरी ईयर ये सूरत का रिकॉर्ड है, आप कहीं से भी ये रिकॉर्ड देख सकते हो। एवरी ईयर उत्तरायण के पहले एंड उत्तरायण के बाद बिकॉज ऑफ थ्रेड 10 ह्यूमन डेथ्स होती है। लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड है ये। एवरेज 10 डेथ्स होती है सूरत के अंदर। मैं ह्यूमन डेथ की बात कर रहा हूँ, थ्रेड की वजह से। और उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो हम ये जो पिक्चर्स में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, वो है। हम सब भी, काफी सारे लोग यहाँ से जो थ्रेड बनवा चुके हैं या जो बनवाने वाले हैं, उनका सबका रहता है कि जो थ्रेड बनवाएंगे ना उसमें हम लोग बताते हैं कि सर इसके अंदर, जो मांझे वाले भैया होते हैं उनको बोलते हैं कि इसमें ग्लास पाउडर ज्यादा डालना। क्यों? क्योंकि ग्लास पाउडर जितना ज्यादा जाएगा, हमें लगता है कि उतना ही हमारा जो थ्रेड है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, उतने ही हम दूसरे के पतंग ज्यादा काट सकते हैं, राइट। ये हमारा माइंडसेट है जिसकी वजह से हम लोग ये चीज करते हैं। लेकिन उससे पतंग कटती है नहीं कटती वो मुझे नहीं पता है, लेकिन 3 चीज होती है। सबसे फर्स्ट, जो पतंग चगाता है, पतंग उड़ाता है, उनके आप विंग्स देखना, सॉरी हाथ देखना, उनके हाथ में, फिंगर्स में काफी सारे निशान पड़ गए होते हैं थ्रेड के। आप देखिए ये जो भैया, ये तो थ्रेड बना रहे हैं तो भी उन्होंने पूरे अपने हैंड में, पूरे फिंगर्स में टैपिंग किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको खुद भी पता है कि ये मुझे हार्म करता है, इससे मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। आप देखिएगा आपके हाथ में अगर वॉट ये ग्लास की जगह ऐसे ही नॉर्मल थ्रेड है, ग्लास पाउडर आपने यूज नहीं किया और नॉर्मल थ्रेड है, तो वो अगर कट लगेगा तो एक नॉर्मल कट लगेगा, थोड़ा ही ब्लीडिंग होगा, साइड ब्लीडिंग ना भी हो क्योंकि नॉर्मल कट होता है। लेकिन अगर उसी थ्रेड के अंदर ग्लास पाउडर है तो वो थ्रेड आपको कट भी करेगा और वो कट के अंदर आपका थ्रेड अटक भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास पाउडर है, जिसकी वजह से जहाँ पे ग्लास पाउडर है वो ज्यादा कट करेगा, ज्यादा अटक गया, इस तरीके से प्रॉब्लम होगा। सेम होता है
बर्ड्स के साथ भी। बर्ड्स को आप देखते हो, अगर नॉर्मल थ्रेड हुआ तो नॉर्मल सा एक कट होगा छोटा सा, थोड़ी सी उसकी विंग्स कट होगी, लेकिन वो ग्लास पाउडर वाला थ्रेड हुआ तो वो क्या करेगा, विंग्स को पहले थोड़ा सा कट देगा और बाद में उसके विंग्स में अंदर चला जाएगा, तो उसकी पूरी की पूरी विंग्स कट जाएगी या आधे विंग्स कट जाएगी, तो वो क्या होगा, हमेशा के लिए वो बर्ड्स ना ही उड़ पाएगा, ना ही वो ठीक से खाना खा पाएगा। और हर एक बर्ड्स जो भी इंजर्ड है वो खुद खाना नहीं खा पाता, जो भी बर्ड्स इंजर रहेंगे खुद खाना नहीं खा पाते, जितने भी टाइम वो हमारे वहां पे रहते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उनको हमें खुद से हाथ से खाना खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। संजय सर शायद जब भी आपसे मिले आप उनसे बात करिएगा, आप उनसे मिलना और पूछना कि एलपी सवानी में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जब वो एलपी सवानी में थे तब, और एलपी सवानी में 11 और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट आज के दिन भी 14th और 15th को स्कूल आते हैं, और स्कूल कैंपस में वो लोग बर्ड्स के लिए एक कैंपेन करते हैं पूरा, जहाँ पे वो जो भी इंजर्ड बर्ड्स प्रयास रेस्क्यू करता है उनको खाना खुद खिलाते हैं, पानी खुद पिलाते हैं, क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग करते हैं। तो सर ने ही वहाँ पे पूरा ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो अभी तक कंटिन्यू है, और वो एंजॉय भी कर रहे हैं सभी बच्चे, राइट। हम भी ऐसा कुछ नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर में प्लान अप करेंगे, हम भी बात करेंगे कि इस पे क्या क्या और चीजें हम कर पाएंगे। ओके, अगर हमें उत्तरायण के दरमियान जो कॉल्स मिलते हैं कि हमारे वहाँ पे बर्ड्स है जिसको इंजरी हुई है, तो कैसे कैसे होती है और हमारी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है जो हम चेंज कर सकते हैं, हम सुधार सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सुबह में जब भी टेरेस पे जाते हैं थ्रेड वेड सब कुछ लेके एकदम क्लियर करके जाते हैं, और एक दिन पहले पहले यानी 13 को, आज के दिन हम लोग टेरेस पूरा साफ कर देंगे कि हमें कल 2 दिन वहां पे पूरा स्पेंड करना है फैमिली के साथ। लेकिन जब 14 को रात को हम वहां से उतरते हैं तब हम अपना टेरेस क्लीन नहीं करते। अपने वहां पे टेरेस पे काफी थ्रेड पड़े होंगे, काफी काइट से पतंग है वो वहां पे पड़े हुए हैं, और भी काफी सारा कचरा है जो हमारा वहां पे पड़ा हुआ है। और वही टेरेस पे हर रोज काफी सारे बर्ड्स खाना खाने भी आते थे, पानी पीने भी आते थे, तो उनके लिए तो रूटीन डेज है। वो 15 को वापस मॉर्निंग में आ जाएंगे अपने टाइम पे कि भाई मुझे खाना वहां पे मिलने वाला है, पानी वहां पे मिलने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं कि मेरे वेलकम के लिए उन्होंने और कुछ भी वहां पे रखा हुआ है, हमने थ्रेड रखे हैं। तो वो खाना खाने आएगा, पानी पीने आएगा, और वो क्या करेगा, थ्रेड के अंदर फंस जाएगा, राइट। क्योंकि उसको पता नहीं है ना कि ये 15 हमारा फेस्टिवल है, उनके पास कैलेंडर नहीं है, ठीक है। तो वो तो अपने रूटीन डेज में आ रहे हैं और फंस जाते हैं। एक ये हुआ, दूसरा हमारे घर के पास हमने काफी सारे पेड़ पौधे वो सब उगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं, हम एनवायरनमेंट का ध्यान देते हैं, इसके लिए हमने पेड़ और वो सब भी किया है, राइट। लेकिन अब क्या, पेड़ वहां पे हो गया, बड़ा हो गया, हमने पतंग चगाया, वो वहां पे गिरा हुआ है, वो थ्रेड वहां पे गिरा हुआ है, उसी पेड़ पे मैक्सिमम बर्ड्स आते हैं और उसी पेड़ पे आके वो फंस जाते हैं। एक और इंसिडेंट होता है कि 2 बिल्डिंग्स, हम जहाँ पे अपार्टमेंट्स में रहते हैं वहां पे 2 बिल्डिंग्स के बीच में काफी सारे केबल्स जाते हैं, इंटरनेट केबल, टीवी केबल, उस पे भी काफी सारे थ्रेड्स होते हैं। आपने कहीं बार देखा होगा कि वहां पे जो बर्ड्स है वो फंस चुका है। और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हैंगिंग बर्ड्स में आती है, यानी लटके हुए बर्ड्स में आती है। क्या डिफिकल्टी होती है? बर्ड्स अपने एक विंग्स पे या एक पाँव पे लटका हुआ है, वहां पे उसका एक विंग्स या एक लेग वहां पे थ्रेड के अंदर फंस गया है। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए काफी ट्राई करेगा, अपने विंग्स को काफी वो झटकाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको पता नहीं है जितना मैं ट्राई कर रहा हूँ ना उतना मैं ज्यादा फंसता जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको जूम करके इसमें दिखाऊंगा कि वहां पे ऑल एक लटका हुआ है, ऑल फंसा हुआ है, उसका लेग पूरा इम्प्यूट करना पड़ा था, तोड़ देना पड़ा था हमें। क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि उसने वो इंजरी इतनी शार्प कर दी थी अपने को छुड़ाने के लिए,
खुद को छुड़ाने के लिए उसने बहुत ट्राई की होगी, उसमें उसका लेग का आधा पोर्शन कट हो चुका था, हमें पूरा पोर्शन वो कट करना पड़ा क्योंकि स्टिचेस लेके के ऐसे वो पॉसिबल नहीं था। हैंगिंग कॉल्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं हमारे लिए, रेस्क्यू के लिए भी और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए भी। ओके, वल्चर्स, काइट्स, ये सब है ना, वो एक हाइट, सर्टेन हाइट्स के ऊपर उड़ते हैं आसमान के अंदर, राइट। वो कैसे इंजर्ड होते हैं? जस्ट बिकॉज हमारी कंपटीशन की वजह से। हम दो चीजों में कंपटीशन करते हैं काइट फेस्टिवल में। कौन सी सबको पता है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक, सुबह जल्दी उठ के पहला पतंग कौन जगाएगा? पहला पतंग मेरा होना चाहिए ऊपर आसमान में। दूसरा, सबसे ऊपर पतंग किसका होगा? होती है सब में ये कंपटीशन, मैं जो बता रहा हूँ ये सब में होती ही है। जब हम थे हम भी करते थे कि सबसे ऊपर मेरा होना चाहिए पतंग, राइट। तो हम Yes, जितना sir. ऊपर जा रहे हैं ना, Yes, हम sir. जितने, थैंक यू एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ हम कर रहे हैं ये चीज, राइट। Yes, sir. हम जितना ऊपर जा रहे हैं ना, उतने ही ऊपर हम ज्यादा बड़ी साइज वाले जो भी बर्ड्स है उनको इंजर कर रहे हैं। आप देखिएगा हाइट पे छोटे जो बर्ड्स होते हैं ना वो नहीं होते, एक हाइट के बाद बड़े बर्ड्स जो है वही होते हैं। ये वल्चर्स, आपने शायद, आप में से काफी सारे लोगों ने वल्चर्स देखे भी नहीं होंगे कभी। सूरत में होते थे पहले, बट अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी लिमिटेड वल्चर्स थे वो हमने या तो ऐसे मार दिए काइट फेस्टिवल में थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत जो भी ऐसे लोग हैं जो इसका शिकार करना चाहते हैं उन लोगों ने मार दिया। देखिए, हम ये प्रेजेंटेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन आपका उत्तरायण फेस्टिवल बंद करना नहीं है। उत्तरायण में आप जो एंजॉय करते हो वो सब करिए, और जो भी बर्ड्स की डेथ हो रही है उसके रीजन सिर्फ हम लोग नहीं है, सिर्फ उत्तरायण जो फेस्टिवल एंजॉय करते हैं वो ही नहीं है, काफी सारे और भी फैक्टर्स हैं, राइट। तो हमें लेकिन एंजॉय करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये सब ना हो। ओके, तो ये वल्चर्स है, पिकॉक है, काइट्स है, आउल्स है, वो सब हमारे पास नंबर ऑफ आ रहा है। एवरी ईयर 10 to 15 वल्चर्स आते हैं। फ्लेमिंगो हमें देखने में काफी अच्छे लगते हैं, हम फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। पिंक कलर के होते हैं, पूरे व्हाइट एंड पिंक में होते हैं, तो हमें Yes, अच्छे sir. लगते हैं वो देखने को। Yes. पिकॉक जब भी साथ में है, एक साथ 5, 6, 10 पिकॉक है, हम लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देख के स्माइल आ जाती है, यार कितना मस्त है। आप देखिएगा कल मॉर्निंग में आप जब जाओगे टेरेस पे, अर्ली मॉर्निंग 6-6:30 को आपको काफी सारे बर्ड्स के ग्रुप्स दिखाई देंगे जो साथ में उड़ते हैं, और वो देख के हमें अच्छा लगता है, हमें स्माइल भी आ जाती है, सब कुछ है। बट 15 को वो देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 14 को उनको ऐसा लगेगा, ऐसा डर रहता है। 14 को जब हम काइट फ्लाइंग करेंगे ना, काफी सारे वहां पे काइट्स होंगे, उनके लिए हर एक उड़ती हुई चीज कोई ना कोई बर्ड्स है, उनको लगेगा ये आसमान में कोई न्यू बर्ड्स आ गया है, तो वो उनसे डरते हैं क्योंकि कभी देखा नहीं है और कोई आया हुआ है, तो वो डरते हैं। तो आप देखोगे 15 को काफी कम बर्ड्स आपको आसमान में दिखाई देंगे, 16 को भी सेम रहेगा, राइट। सेकंड थिंग, Yes, sir. Yes, sir. अभी विंटर सीजन चल रहा है, सबको पता है, और विंटर में काफी सारे माइग्रेटेड बर्ड्स सूरत के अंदर आते हैं। आप अगर सूरत के अंदर जो क्रूजवे है वहां पे जाओगे, सरदार ब्रिज है वहां पे जाओगे, केबल ब्रिज है वहां पे जाओगे अर्ली मॉर्निंग, तो 6 to 8, 6 to 9 ये टाइम पे आपको काफी सारे वाइट कलर के बर्ड्स दिखेंगे, और आप वहां पे खड़े रह के उनको खाना भी खिला सकते हो। अगर आप कुछ लेके जाते हो तो वो लोग आपके हाथ में आके खाना खा के जाते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट। वो क्या हुए हमारे लिए? गेस्ट है, वो हमारे गेस्ट बन के आए हैं सूरत के अंदर। वो सूरत के बर्ड्स नहीं है, वो कोई भी बर्ड सूरत का नहीं है। आपको जैसे ही प्लीज, ये किसका माइक ऑन है, ये म्यूट कर दीजिएगा। Yes, sir. Yes, thank you. Please continue.
सो वो जो माइग्रेटेड बर्ड्स है ना, वो हमारे वहाँ पे सूरत में जो मिलते हैं वो कहाँ के हैं? पता है किसी को कहाँ से वो? देखे, सबने देखे तो होंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Siberian crane comes from Siberia. Even Europe. मेजरली Yes. हमारे वहाँ पे जो है ना 4 कंट्रीज से आते हैं, जैसे बोला साइबेरिया से है, उसके अलावा हमारे वहाँ पे रसिया से मैक्सिमम बर्ड्स आते हैं, जो रसिया के बर्ड्स होते हैं वो हमारे वहाँ पे ज्यादातर मिलते हैं। तो वो सब बर्ड्स हमारे वहाँ पे विंटर में आए हैं, और बाद में जैसे विंटर आगे बढ़ता जाएगा वो कंट्री चेंज करते जाते हैं। तो अभी Yes, क्या हुआ, sir. वही They are बर्ड्स from November to Jan. एग्जैक्टली तो वही बर्ड्स 14-15 को भी यहाँ पे रहते हैं। उनको पता नहीं है कि इन लोगों का, सूरत वालों का 14-15 को उत्तरायण है, तो उनको पता नहीं है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और उसमें से काफी सारे बर्ड्स एवरी ईयर हमारे वहाँ पे जनवरी के बाद हमारे वहाँ पे रह जाते हैं। अब वो बर्ड्स विंटर में ही रह सकते हैं, जैसे ही समर आता है वो धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बाद में डेथ हो जाती है। तो ऐसे एवरी ईयर 100 बर्ड्स है जो सूरत के अंदर ही रह जाते हैं, और समर आते आते वो डेथ हो जाता है। कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ उसके लिए? हम लोग। हमारे We घर are पे कोई गेस्ट आए, हमारे घर पे कोई गेस्ट आया, और हमने क्या किया, हम बाहर ही खड़े थे कि आओ हम लोग काटने के लिए खड़े हैं आपको। सेम चीज हुई। ओके, ये पोस्टर में सेम बर्ड है जो आसमान में है, उड़ रहा है, वो हम देख रहे हैं, उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। और उसके बाद वही बर्ड्स है जो नीचे गिरा हुआ है। दोनों में से कौन सी फोटो लेना अच्छा लगेगा हमें? कौन सी फोटो या कौन से बर्ड को हाथ में लेना हमें अच्छा लगेगा? कौन से बर्ड्स को खाना खिलाना अच्छा लगेगा? फर्स्ट वाला, सबको वही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज नेचर में जैसी है वैसी रहेगी तो हमें अच्छी लगेगी। पेड़ अगर बड़ा है और रास्ते के बीच में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन पेड़ अगर खड़ा है तो ही हमें अच्छा लगेगा। जैसे ही वो पेड़ गिर गया उसके बाद हम लोग वहां से बाजू में से निकल जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? वैसे ही एनिमल बर्ड्स सबके लिए सेम है कि जब तक वो आसमान में है, उड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब तक हमें बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे ही वो नीचे गिर गए हमें अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो अपनी नेचुरल चीजें वो नहीं कर रहा है। तो उसको नेचुरल चीजें कौन नहीं करने दे रहा है? हम लोग। Humans. राइट, We humans. यस। तो वही चीज हमें ध्यान रखनी है कि वो कैसे हम लोग कम कर पाए। Chirag sir, am I audible? Yes, sir. I believe Chirag sir is
having Hello, some hello. kind of. Yeah, is it audible? Is it audible? Yes, sir. Yes, Yes, you sir, are you're audible. audible. Yes, sir. Yes, it is audible. Yes. Okay, okay. सो मेनली जो हम चीजें कर रहे हैं और कौन सी चीजें गलतियां कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमने ये वीडियो के अंदर देख लिया है। सबको ऑलरेडी पता चल गया कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और कौन सी गलतियां हैं हम चेंजेस कर सकते हैं, जो मैंने बीच बीच में आपको उसके बारे में गाइड भी किया, राइट। और सेकेंडली मैंने जो बोला कि जो हम एक स्कूल नहीं, सूरत के अंदर 5 से 6 स्कूल है जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं अभी। तो ऐसी ही एक्टिविटीज आप भी कुछ ना कुछ हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान अप कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हम लोग ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ हम कंट्री साइड के साथ मिलके हम लोग एक्टिविटीज करें। इस साल में भी हमारा डिस्कशन हुआ था बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड ऑल दैट हम लोग वो कर नहीं पाए। बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ प्लान अप करेंगे। पर इस साल आप घर से भी काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो जो आपको मुझसे ज्यादा अच्छे आपको आपके टीचर्स बता पाएंगे कौन से एक्टिविटीज कर पाएंगे। जैसे होते हैं थ्रेड कलेक्ट कर सकते हो आप, आपके घर के पास जो थ्रेड्स होते हैं ना वो आप थ्रेड कलेक्ट कर सकते हो। और वो थ्रेड से क्या हो सकता है, वो थ्रेड से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, राइट। तो Yes, sir. वही सारी चीजें बना के जब भी आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं आप आपके स्कूल में लेके जाइए। स्कूल के अंदर हम उसका स्पेशली एग्जीबिशन या डिस्प्ले या कुछ भी ऐसा कुछ प्लान अप कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा जब आप में से काफी सारे बच्चे वो कुछ लेके जाए, वो कुछ बना के जाओ। तो आपके सर के साथ और प्रयास के साथ हम मिलके उनका कुछ एग्जीबिशन कर पाएंगे, उसका डिस्प्ले सेटअप कर पाएंगे। और जो भी बर्ड्स इस साल करंट ईयर में अगर हमारे पास जो भी बर्ड्स आते हैं उसमें से कोई भी बर्ड्स अच्छा हुआ तो हम ट्राई करेंगे कि उन बर्ड्स को जो रिलीज प्रोग्राम होता है उन बर्ड्स को वापस से फ्री करना, वो प्रोग्राम हम लोग आपके स्कूल के थ्रू करें जो हम संजय सर के साथ बात रही है। तो एक जस्ट हमें इमेजिन करना है, जस्ट आप लोग बैठे हुए एक चीज सोचिए, एक है काइट फ्लाइंग करना, उसकी एक मजे ले रहे हो और काइट फ्लाइंग करके आप बर्ड्स को काट रहे हो उसकी मजे, और दूसरी ओर आप एक बर्ड्स को अपने हाथ से रिलीज कर रहे हो। कौन सी चीज ज्यादा आपको अच्छी लगेगी, कौन सी चीज पे स्माइल Releasing the bird. Releasing the birds. Yes, sir. Second one. Yes. वो प्रोग्राम हम इस साल करने वाले, अगर अपने स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं और तब तक जो भी बर्ड्स हमारे पास अच्छे होंगे हम डेफिनेटली स्कूल के अंदर आएंगे वो बर्ड्स लेके और हम अपने वहां से रिलीज करेंगे। अभी हमें जो नहीं करना है, मैं 3 चीजें जो रिपीट कर रहा हूँ वापस से, वो हमें ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट, मॉर्निंग बिफोर 9 हमें कोई भी किसी को भी अगर ना करो काइट फेस्टिवल बिफोर 9 तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 5 to 9 का टाइम वो है जब सभी बर्ड्स जो है मोस्टली बाहर आते हैं खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए। इवनिंग 5 o'clock के बाद अगेन सेम रूटीन उनका रहता है, वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ और अपने ग्रुप में वो लोग वापस से बाहर जाते हैं खाना खाने पानी पीने के लिए। तो मॉर्निंग 5 to 9 एंड इवनिंग 5 to 10, 5 to 8, 5 to 9 इवनिंग का टाइम, ये सेम टाइम पे हमें अवॉइड करना है काइट फ्लाइंग या ऐसा कुछ भी। उस टाइम पे करने के लिए अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट थिंग्स बहुत सारे अपने पास है जो हम फैमिली के साथ कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी एक और चीज आ गई है, नाइट में हमें कुछ और करना होता है। क्या करते हैं हम नाइट में, उत्तरायण में? Sir, we those and we बलून्स, हम Balloons. बलून्स भी लेके आए हैं, राइट। तो वो भी कैसे हम कर रहे हैं हम सबको पता है। हाँ, 14-15 को आप देखोगे न्यूज़पेपर आएगा मॉर्निंग में, तब हमें पता चल जाएगा हमने कितनों के घर जलाए, कितने की फैक्ट्रियां जलाई, सब कुछ हमें न्यूज़पेपर में पता चलता है, राइट। yes sir. साथ में Yes, प्लास्टिक sir, भी है yes. उसमें, राइट। और साथ में प्लास्टिक्स भी होते हैं, वो प्लास्टिक भी कैसे हम करते हैं वो भी हम सबको पता है, राइट। तो एक ये चीज करनी है कि टाइमिंग मैनेज करने हैं, मॉर्निंग 5 to 9 और इवनिंग 5 to 9। सेकेंडली मैंने जो बोला, टेरेस से जब भी आप नीचे जाओ तब ध्यान रखो अपने टेरेस पे कोई भी थ्रेड, फटे हुए काइट्स और ऐसा कुछ भी वहां पे ना हो। कर सकते हैं हम ये सब चीजें? Yes, sir, we can do it. Sir. Yes, sir. अगर We can do इसमें it. से Yes, sir. अगर इसमें से कुछ भी नहीं करना है हमें, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हमें पतंग भी उड़ानी है, टाइम भी मैनेज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो एक चीज करनी है। अगर इन केस कोई बर्ड्स आपको दिखता है जो इंजर्ड है तो आपको उसको टच नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको प्रयास संस्था का हेल्पलाइन नंबर यहाँ से दिया जाएगा,
वो प्रयास संस्था के हेल्पलाइन नंबर पे आपको सिर्फ कॉल करना है, राइट? इतना हम कर सकते हैं। और वो बर्ड्स Yes, को sir. Yes, sir. वो बर्ड्स को जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उसको रहने देना है। उसको हम लोग को ज्यादा वो नहीं करना है कि चलो यार वो पड़ा हुआ है उसको हम पानी पिलाते हैं। पानी नहीं देना है। आप पानी उसको अच्छे के लिए देने जाओगे, लेकिन जैसे ही वो पानी पिएगा वो डेथ हो जाएगा, राइट? तो पानी नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है। वो जैसे भी बैठा हुआ है उसको वैसे ही बैठने दो। प्रयास संस्था या किसी भी एनजीओ का आपके पास नंबर है, उन एनजीओ को कांटेक्ट करो, वो लोग आएंगे और उसको रेस्क्यू करके जाएंगे। और इस साल तो ऑलरेडी बर्ड फ्लू के बारे में आप सबने ऑलरेडी सुना हुआ है। सो आपको Yes, पता sir. नहीं है कौन सा एनिमल है जो उसके साथ अफेक्टेड है, जिसको ये फ्लू अफेक्टेड है। तो आपको अगर बर्ड दिखता है बस दूर से आप इन्फॉर्म कर दो। हमारे एनजीओ के जो भी वॉलंटियर्स है वो ट्रेन है कि बर्ड फ्लू वाले एनिमल्स को कैसे हमें लेना है। तो आप किसी भी बर्ड्स के नियरेस्ट मत जाइए, आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ से सर दे देंगे, आपको उसी के साथ वो करना है, Okay, sir. Okay, sir. राइट? Yes, sir. Sure. Okay, sir. हेल्पलाइन नंबर सर आप एक बार मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ, ताकि वो लोग स्टोर कर पाए। वो हेल्पलाइन नंबर पे किसी को भी मिस कॉल नहीं करना है, हमें सेव करना है नंबर, ओके? वरना Yes, sir. हमारी एक आदत रहती है Yes, कि sir. हम लोग कोई नंबर स्टोर करते हैं तो पहले मिस कॉल करते हैं, तो वो मत करना, ओके? कि आप में से किसी को भी कुछ भी जानना हो बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज के रिगार्डिंग, आप 1 by 1 करके क्वेश्चन रेज कर सकते हो। Okay. Chirag, Chirag, sir, Yes, Dr. Sanjay Mehta here. I will take 1 Yes. minute. Thank you. Yes, It sir. was a wonderful session, sir. Yes. You can continue. I was just listening to you. And we have already prepared a poster and today we will release. So once the number is there, we have also identified a few volunteers. It could be possible they may come to your center there where you are having that Madhuvan circle. Definitely. Or definitely we are going to release the number along with Prayas. We will try. And children, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप थ्रेड का कलेक्शन करो, क्योंकि जितने स्ट्रीट और ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज वहां जाके भी बर्ड्स को बहुत इंजरीज होती है। तो कहीं पे भी थ्रेड मत रखो, आपके टेरेस साफ कर दो, आपके नेबर्स, आपके आजू बाजू के सराउंडिंग में से थ्रेड ले लो। और जैसे सर ने बताया आप बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। यू कैन प्रिपेयर, मोबाइल का कवर बनाओ, कुछ पेंटिंग बनाओ, उसमें ड्रॉ करो, उसमें ये चिपका दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। वी विल हैव अ डिस्प्ले ऑफ इट, सो डिटेल्स विल बी गिवन। Chirag sir, thank you very much, and soon I will be connecting to you. I know that you are very busy. Chirag sir बहुत busy है अभी, फिर भी he was generous enough to give us time. So thank you sir, and we will share the poster. So nice of you. Thank you. थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया हमारा देखिए एरिया वाइज हमारे काफी सारे शेल्टर, स्मॉल शेल्टर बनने वाले हैं, जहाँ पे आप जाके हमारे जो वॉलंटियर से प्रयास किए उनको हेल्प कर सकते हो। मधुवन सर्कल अड़ाजन पे एक बन रहा है। उसके अलावा हमारा मेन जो ऑपरेशन थिएटर रहेगा, सेंट्रल ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे पूरे सूरत से बर्ड्स आएंगे और ऑपरेट वहाँ पे किए जाएंगे, वो अपना रहेगा मजूरा गेट दयाल जी आश्रम पे। अगर कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे बर्ड्स को देखना चाहता है तो अपने पेरेंट्स के साथ आप वहाँ पे आ सकते हो। हम आपको वहाँ पे बर्ड्स का वहाँ पे कैसे पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है वो आपको वहाँ पे दिखाएंगे। अगर वहाँ पे कोई बर्ड्स इंजर्ड है जिसको खाना खिलाना बाकी है, अगर आप आते हो हम ट्राई करेंगे वो आपके हाथ से हम खाना खिला पाए, उनको आप खुद पानी पिला पाओ, वो सब चीज हम वहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते। ओके, किसी को क्वेश्चन था प्लीज? Yes, children. 1 by 1 you may ask, sir. Okay. And sir, before we proceed to the question answer session, children, I want to add. See, sir ने जो 3 स्टेप बताया ना, you write it down. Okay. You write those steps down. Okay. So just as sir said, before 9 a.m. and after 5 p.m. it kite flying नहीं करना है. Okay, before 9 p.m. before 9 a.m. and after 5 p.m. Okay. The other thing is that आपको वो अगर आपने ऑलरेडी परचेस कर लिया है वो धार वाला मांझा, तो प्लीज
आप वो यूज मत कीजिए, दूसरा सिंपल वाला लेके आइए, यूज दैट। ओके, एंड सर यू प्लीज शेयर द नंबर, द हेल्पलाइन नंबर इन चैट, so everyone note down that number. It is very important that you have that number. Okay, we can get the number directly from sir and you can note it down. As sir said, आपको मिस कॉल नहीं करना है, because obviously they are going to be very busy tomorrow, है ना, वो लोग कल बहुत बिजी रहेंगे, तो आप ऐसे ही कॉल नहीं करना है। यूज दैट नंबर वेरी एंड जेन्युइनली, एंड जहाँ पे हेल्प की जरूरत है प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर। सर ने आपको दो सेंटर्स बताए, एक मधुवन सर्कल and the other one is Madhura Gate. If you want to visit that center to see how they take care of birds, you can also go there. Protection, and you go with your parents. Okay, now let us move on to the question answer session. One by one, I'm calling out your names and you can speak. Okay, so Tanmay, let's start. Yes, sir. So, sir, I had a doubt that you said that if we see a bird, so that we don't need to go near it and give water and all. You said that if it drinks water, it will die instantly. So, sir, why is that so? देखिए, जब भी बर्ड्स, कोई भी बर्ड्स होता है, सबसे पहले बर्ड्स की साइज और हमारी साइज काफी कम है। अगर एक पिजन हुआ, इतना छोटा होता है पिजन, राइट, हमारा इतना बड़ा बॉडी है जिसके अंदर हार्ट की साइज क्या है, इतनी। तो बर्ड जो है उसमें हार्ट की साइज एकदम छोटी सी, एकदम इतनी सी। तो आप जब भी देखिए कोई भी बर्ड गिरा हुआ है जो इंजर्ड है किसी थ्रेड की वजह से या किसी की वजह से, तो पहले से काफी डरा हुआ है, उसको डर लग रहा है दो चीजों से। एक तो पहले गिरा है, दूसरा उसको ह्यूमंस दिख रहे हैं काफी सारे, हम जैसे काफी ह्यूमंस उसके नियरेस्ट आ गए होंगे, जिसकी वजह से उसको डर है। तो अगर आप पानी या वो कुछ रखोगे ना, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी पी जाएगा। तो वो इतना फास्ट वो पानी पीता है जिसकी वजह से वो जो पानी है वो उसका हार्ट जो है वो स्टॉप कर देता है। जो हम हार्ट अटैक बोलते हैं ह्यूमन के अंदर, वही चीज उन लोगों में भी होती है, क्योंकि हार्ट की साइज एकदम छोटी है और पानी एकदम जल्दी से पिएगा और ज्यादा पी जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक उन लोगों में भी होते हैं, जिसकी वजह से इमीडिएटली वो वहां पे ही डेथ हो जाएगा। और ये केसेस बहुत सारे होते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें पता नहीं है कि पानी पिलाना है नहीं पिलाना। हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, उसके लिए हम पानी पिला देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि पानी पीने से उनको ये चीज हो रही है, जिसकी वजह से हम ना बोलते कि अवॉइड करिए पानी पिलाना। Thank you very much for sharing this information. ये honestly हमें नहीं पता था। I being an adult and I being the teacher, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। And ये आपने बताई, and very thank you so much for that. Yes, Riva, you can speak, beta. You can ask. Yes, sir. Sir, you told that many of the birds are dying. So, sir, can you just tell the names of the birds who are dying the most in this festival? मोस्टली जो हमारे रूम घर के पास हमें सबसे ज्यादा जो दिखते हैं ना, वही होते हैं। सबसे ज्यादा होते हैं पिजन, सेकंड नंबर पे आते हैं आउल, थर्ड पे होता है क्रो, राइट। ये तीन सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके अलावा काफी सारे हैं जो रेयर फिश है, जो शायद आप लोगों ने देखी नहीं होगी। फ्लेमिंगो आप में से काफी कम लोगों ने देखे, वल्चर्स आप में से काफी कम लोगों ने देखे, पिकॉक्स हमने देखे, लेकिन अपना नेशनल बर्ड्स है, वो भी इंजर्ड हो रहा है, वो भी डेड हो रहा है। तो ये सब बर्ड्स ऐसे हैं जो काफी कम है और उनको हार्म नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी हार्म हो रहे हैं। पिजन्स हार्म होते हैं तो हम लोग ऐसा कर देते हैं यार ठीक है, पिजन्स तो इतने सारे हैं, कुछ कम हो जाए तो क्या होगा। लेकिन एवरी ईयर वो जो कम हो रहे हैं ना, वो फिगर अभी हो के बहुत ही कम हो रहा है। तो एक टाइम आएगा शायद हम, जैसे अभी स्पैरो आपको बहुत कम दिख रही है, शायद नहीं दिख रही है, पहले हमें घर के पास काफी सारे स्पैरोज दिखते थे। Yes, तब हम क्या करते थे, दिखता था तो ठीक है, वो तो बहुत सारी स्पैरो होती है, लेकिन अब काफी कम स्पैरो है, स्पैरो नहीं दिखती, राइट। कभी कभार दिखती है तो हम लोग दिखाते हैं, देख वहां पे स्पैरो है। तो एक टाइम शायद 10 ईयर 15 ईयर्स के बाद ऐसा आएगा जब वापस हम लोग क्रो के लिए या ऑल के लिए करेंगे। 10 ईयर्स के बाद शायद क्रो हमें काफी कम देखने को मिलेंगे, ऑल कम देखने को मिलेंगे, राइट। तो वो चेंजेस धीरे धीरे आते हैं जो हमें अवॉइड करने के वो ना आए। इसके लिए हम लोग इस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन और वो सब चला रहे हैं।
Okay, sir. So, sir, can you tell the address of the NGO which is on Majura Gate? ओके, मैं वो अपने चैट बॉक्स में अभी आपको डाल देता हूँ, तो आप वहां से देख सकते हो. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, Kishika, you may speak. Yes, sir. Sir, I want to say that I have during these Uttarayan's, the two-wheeler people, they have some wire at the front, so they have been saved themselves from this thread. But sir, there is awareness. People say that there is no awareness, but there is awareness, sir. There is a solution, that this very sharp thread, we can use the cotton thread. But why are not people using the cotton thread? Instead they are using this sharp one only, and this sharp one and cotton one will not affect the their flying of the kite. It would so sir, why are people not ready to changes which cannot even affect the birds? Look, दो तीन चीजें हैं जो मैं इसमें आपके साथ ऐड करना चाहूंगा. Yes, sir. All the peoples are not sensible like you. जितना आप सेंसिबल हो इस सब चीजों के लिए, उतने सभी लोग सेंसिबल नहीं है कि हमें बर्ड्स को बचाना है, उनका इम्पोर्टेंट क्या है. राइट. आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो, आप एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट है जो स्टडी कर रहे होगे. अर्थ की एक एनवायरनमेंट साइकिल है पूरी, जिसको हमने 1 to 7 ऐसे हमने डिवाइड किया हुआ है, प्रायोरिटी. राइट, कि कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उसमें अगर आप देखोगे तो ह्यूमन जो है, हम लोग जो है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, 5th या 6th पोजीशन पे है. राइट. एंड जो बर्ड्स है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे. तो इम्पोर्टेंट कौन हुआ ये पूरे अर्थ के लिए? हमसे ज्यादा बर्ड्स, एनिमल्स, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. लेकिन वो अवेयरनेस अभी तक सभी लोगों में नहीं आई है. हम इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं. अभी हमने आप लोगों को बोला है, यही चीज आप लोग पास ऑन कर सकते हो आपके पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, कि कैसे ये कम कर सकते हो. आपने बोला कि नायलॉन थ्रेड, वो भी आपको सबको समझाना चाहते हैं. पेरेंट्स को भी आप समझा सकते हो कि अगर आप थ्रेड जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बनवाते हो, आप काइट फ्लाइंग करते हो, तो उससे आपको क्या मजा आएगा. आप बोलते हो कि हमारी पतंग कम कटेगी. राइट. तो लेकिन आपने घर पे पतंग तो लेके रखी है, 100 200 पतंग लेके रखी है. तो क्यों लेके रखी है? अगर पतंग कटेगी नहीं तो आपको मजा क्या आएगा? नहीं, आपकी कटेगी नहीं, उनकी कटेगी. तो उससे बेटर है आप नायलॉन थ्रेड लीजिए. नायलॉन थ्रेड से आप पतंग उड़ाइए, पतंग उड़ाने का मजा लीजिए, लेकिन साथ में आप जो मारने का मजा है ना, वो कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए. हमें मारने का मजा नहीं लेना है. But sir, people say that एक से क्या होगा? If we are changing ourselves, then it won't matter. Like everybody should change their thoughts. But like even on Diwali, people think that if we will not burst firecrackers, then there will be no change. It should be everyone. So then people will not change themselves this way. नहीं, देखिए चेंज काफी हुआ है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं है. सूरत के अंदर जो आज कॉल्स आ रहे हैं, हमें 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन के अंदर हमारे पास एवरेज आज से 5 साल पहले 3500 to 400 कॉल्स आते थे 4 दिन के अंदर, कि हमारे वहाँ पे इंजर्ड बर्ड्स है या ऐसे. लेकिन आज के दिन में लास्ट ईयर का रेशियो जो वो था 1800 कॉल ही हमें रिसीव हुए थे. यानी वो रेशियो लास्ट 5 इयर्स में काफी कम हुआ, ऑलमोस्ट 50% हो चुका है. तो वो कम हो रहा है. वो कैसे कम हो रहा है? जैसे ही आप इतने सेंसिबल हो रहे हो, वैसे ही काफी सारे और भी लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग सेंसिबल हो रहे हैं. तो ये आप तक ना रख के, जैसे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम हम पूरे सूरत में नहीं कर पाते, तो हम आप तक पहुंचाते हैं. अभी आपका काम है आप आपके फैमिली मेंबर्स तक और वैसे आगे स्प्रेड करो. यस यस यस. जैसे ही ये स्प्रेड होता जाएगा, ये धीरे धीरे करके सबके समझ में आएगा. और एक टाइम होगा शायद हमें इस तरह एनजीओ का, जैसे मैंने बोला ऑपरेशन थिएटर खड़ा किया है मजूरा गेट पे, शायद वो करने की जरूरत ना हो. यस. हाँ, हमें भी चाहिए कि वो ऑपरेशन थिएटर ना खड़ा हो, हमारे पास इतने एनिमल बर्ड्स ना आए. तो वो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, और उस सब में हम लोग सब साथ में मिलकर उसमें ट्राई करेंगे. Okay. Thank you so much. Yes, okay sir. We do not have much time. सर एक सवाल है जो बच्चों ने चैट में लिखा है, उसमें से मैं आपको पूछना चाहूँगा सर. सर चिल्ड्रन आर आस्किंग कि ये जो बर्ड फ्लू है, व्हाट इज द रिस्क
इस बार क्या उसका एडेड रिस्क है बर्ड फ्लू की वजह से, और वो बर्ड्स के लिए और हमारे लिए कितना हार्मफुल है अभी ये जो अभी बर्ड्स जो जैसे मरेंगे, तो बर्ड फ्लू हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है इस बार। देखिए, बर्ड फ्लू ऑलरेडी सूरत के अंदर सस्पेक्ट हो चुका है। सूरत के अंदर उसके ऑलरेडी काफ़ी सारे केस आ चुके हैं, और ये अभी तक इतना ही मालूम चला है जो हमें पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ की मीटिंग में, कि क्रो के अंदर पाया गया है, एक ही बर्ड्स के अंदर क्रो के अंदर पाया गया है वो। लेकिन क्रो से वायरल होके वो बर्ड्स दूसरे बर्ड्स में भी जा सकते हैं। एंड यस, इट अफेक्ट टू अस ऑल्सो, ह्यूमन ऑल्सो, वो हमें भी अफेक्ट करते हैं। ये जो बर्ड फ्लू है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी नॉर्मल वायरल फ्लू, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, ये सब डिजीज हो सकते हैं। तो हमें, और इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको कोई भी इंजर्ड बर्ड्स दिखता है, अगर इंजर्ड नहीं है और एक जगह पे बैठा हुआ है, तो भी हमें उसके नज़दीक नहीं जाना है। करंट सिनेरियो ये है कि हमें नहीं जाना है, अदरवाइज हम बोलते हैं कि आप उसके नज़दीक जाके उसके ऊपर कपड़ा डाल दीजिए, बट करंट ईयर में हमें वो भी नहीं करना है, जस्ट क्योंकि ये बर्ड फ्लू और वो सब है। हमारे लिए भी गाइडलाइंस है कि हमारे वॉलंटियर भी जो है उनको हमने 100% पीपीई किट दिया हुआ है। कंपलसरी है कि अगर आपको बर्ड्स को रेस्क्यू करना जाना है तो आपको कंपलसरी पीपीई किट पहनना है, कंपलसरी ग्लोव्स उसके अलग से है वो पहनने हैं। तो हमारे पास सूरत के अंदर 500 वॉलंटियर्स है, हर एक एरिया में 50 वॉलंटियर्स है, तो हर एक बंदों को हमने, हर एक हमारे वॉलंटियर्स को 50 की पीपीई किट, ग्लोव्स, वो सब कुछ प्रोवाइड किया है। और हम ट्रेन है कि अगर वायरल वाला कोई बर्ड्स आता है तो हमें पता चल जाएगा कि इसको बर्ड फ्लू है या नहीं है उसके सिम्टम्स से, तो उसकी ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास वो ट्रीटमेंट के लिए भी जो भी ड्रॉप्स है वो सब कुछ अवेलेबल है। जो वॉलंटियर्स आपके घर पे आ रहे हैं उनके पास भी है, तो वो लोग इमीडिएटली उनको जो दवाई देना है वो दे देंगे, और फर्दर हम लोग उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमें, आप में से किसी को भी कोई बर्ड्स दिखता है या करता है तो आपको दूर से दिखना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, राइट। आप में से कोई भी अगर हमने दयाल जी आश्रम जो बताया वहाँ पे विजिट करना चाहता है तो आप, मेरा नंबर मैं अभी जस्ट चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, चिराग कायश, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके आप वहाँ पे आ सकते हो विजिट करने के लिए। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं एक लास्ट चीज ऐड करना चाहूँगा सर, पल बेटा, सॉरी हमारे पास बहुत कम टाइम है ना, पर विल जस्ट कंक्लूड एंड यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन via school and I will forward it to Chirag sir. Is that fine? Sir, actually I don't have any doubt, but I wanted to ask that is there some like nice NGO in Baroda? Actually I'm in Baroda and celebrating Uttarayan in Baroda, so I wanted to ask. यस, मैं आपको आप चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल दीजिए, बरोड़ा एनजीओ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मैं आपको प्राइवेट में वो नंबर शेयर कर देता हूँ। Yeah, sure sir. Okay, so children, now I hope that we had a very informative as well as a touching session. Okay, and see, just now as Kishika asked कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है ना, so जब आप we do not realize it because तुम जब पतंग चगाओगे और तुम्हारे धागे से वो बर्ड मरेगा, and if you could see that, then I promise you, you will never fly a kite again in your life. ठीक है, तुम चगा रहे हो और if you will see a person or a bird getting harmed with that, you will never fly again in your life, है ना, because Yes, we do not feel the responsibility. Okay, हमको वो responsibility feel नहीं होती है, and it is by such sessions, ऐसे sessions से हमको awareness, obviously हमको सर ने बताया है, you go and talk to your friends, you talk to your relatives, you talk to your parents, है ना, you spread the awareness, जैसे सर ने बताया, you spread the awareness because we cannot wait, हम उतना वेट नहीं कर सकते कि सबके धागे से एक बर्ड मरे और तब जाके सबको रियलाइज हो। yes, that is not feasible and not possible. Okay, Yes. so thank you Chirag sir for such a wonderful session. We thoroughly enjoyed it, and we hope that obviously, just as you said, since starting next year we can have such activity in our school as well.
and we look forward to many more such informative sessions. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Yes, children, you can Yes, thank sir. sir. Thank you, And sir. sir, if you want to give us a message, please. जस्ट लास्ट थिंग, मैंने जो बोला है कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी आपको शेयर कर दिए गए हैं। अगर कोई भी बर्ड्स आपको दिखता है, नॉट ओनली बर्ड्स, और ये प्रयास एनजीओ सिर्फ उत्तरायण में नहीं है, 365 डेज है सूरत के अंदर। तो आप कभी भी कोई बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स कुछ भी देखो, आप इमीडिएटली उस नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारे वॉलंटियर्स कुछ टाइम में आपके पास पहुंच जाएंगे। थ्रू आउट द ईयर अगर आप में से कोई भी हमारे एनजीओ की शेल्टर विजिट करना चाहते हो, डुमस एयरपोर्ट के सामने साइलेंट जोन के अंदर हमारे 2 बड़े शेल्टर्स है, जहाँ पे आप काफी सारे न्यू बर्ड्स एंड एनिमल्स जो आपने देखे नहीं है, आप वहाँ पे आके उनके साथ खेल सकते हो। राइट, हमारे वहाँ पे पिकॉक्स है, हमारे वहाँ पे पैरट्स है, सब कुछ है, मंकीज है, सब कुछ वहाँ पे है, और इंजर्ड है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बाहर जा सकता है, सब इंजर्ड है। तो आप वहाँ पे आ सकते हो और उनके साथ खेल सकते हो। राइट, तो आपको कनेक्टिविटी जो है ना बर्ड्स एनिमल्स के साथ, वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आपको पता चलेगा उनका बिहेवियर कैसा होता है, क्या होता है। राइट, तो ट्राई करिए कि आप में से जो भी है उत्तरायण के बाद कभी भी आप संडे को या ऐसे आ सकते हो, तो आप आ सकते हो। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। For sure, for sure. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड चिल्ड्रन, अभी आपको एक ड्यूटी है, आपको पता है आपकी ड्यूटी, वो आपको एग्जीक्यूट करनी है। ओके, Yes, so we are ending the session now. See you again Okay, after the holiday. Okay, bye. Okay, bye, sir. Bye, Take care. sir. Stay safe. Happy Uttarayan. Thank you once again, sir. Happy Makar Sankranti. Happy